Today we are united to create a flag under the Nashamukh Bharat Abhiyan. Today, morning to all of you. Today I stand to tell you about the effect of smoking. Smoking is a dangerous habit. Smoking is not good for health. The person who smokes is called smoker. But many people have died because of smoking. Some people try smoking every day. I am totally unable to tolerate the smoking smell. There is no benefit in smoking. I humbly request to all of you, please fight this bad effect of smoking. Thank you. सबको आगे है आना, नशा है एक बहुत बुरी लत, हमें नशा मुक्त भारत है बनाना। हम सब में है ये ठाना, नशा मुक्त हो भारत अपना। जीवन में अगर स्वस्थ है रहना, तो नशे से हमें दूर है रहना। अब हम सब ने है ये ठाना, नशे को है जड़ से मिटाना। देश को Drug addiction refers to taking any substances that is harmful to our body. The very common form of drug addiction are alcohol, cigarettes, medicines, tobacco. Person uses drugs to change his mood or to feel better, not for healthy purpose. Drug addiction adversely affects family and isolates the person from society. Drug addiction is always harmful to our health. Creating a healthy and peaceful environment in a family can reduce the risk of drug addiction. Yoga is a natural and effective way to throw away drug addiction. With strong determination. Respected headmaster and our teachers, my dear brothers and sisters, first of all, I wish a very good morning to all of you. Today, I want to tell you about drug addiction. The drug is a substance that can cause the death of an organism if taken more than the dosage. It causes a changes in the physiological and psychological structure of the organism when it doesn't there are various mediums through which one can intake or consume drugs like smoking, inhalation, injection, etc. All types of drugs are dangerous for health, so we must to save ourselves from this bad habit. We must say slogans like no to drugs and yes to life. Thank you. Has been become a serious problem all over the world. The number of teenagers and young people getting addicted to drugs is increasing day by day. Various types of drugs like cocaine, marijuana, heroin, etc. are consumed by the addicts worldwide. जो नशा है ये अच्छी चीज नहीं है। आपने देखा होगा कि घरों के अंदर अगर कोई भी इंसान नशा करता है लेकिन उसका नुकसान उनके घरवाले भी उठा लेते हैं। मान लीजिए एक स्मोकिंग करता है और उसके साथ क्या होता है घर का, आपने देखा होगा बुजुर्गों को, वो उनको अस्थमा लग जाता है। और आपने सुना होगा कि ये ब्लड रिलेशन में कहीं ना कहीं दुख देता ही देता है। अजीज बच्चों और बच्चियों, आप लोगों ने, आप नन्हे मुन्ने फूल हैं, आपको बचने का टाइम है। जो बड़े हैं जिन्होंने गलतियां खा ली वो वापस आ सकते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस दिन ऐसे जैसे नशों से दूर रहें। लिहाजा मैं आप लोगों को यही इल्तिजा करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा। हमारा जो मिडिल स्कूल डाला है
मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने जो घर में लोग हैं बड़े, उनको बता देना कि स्कूल के हमारे आते के अंदर कोई भी गलत काम, कोई भी नशा इस स्कूल के आते के अंदर नहीं होना चाहिए। आगे समझ में आप लोगों ने ये पैगाम जो है आज जो हमने ये प्रोग्राम किया, हमारे असातिज़ा कराम ने खूब कहा, बहुत अच्छा कह दिया, आप लोगों को नसीहत की। हमारा काम है नसीहत करना, अमल करना आपका काम है। हमारा काम है आप लोगों को पढ़ाना, लेकिन पढ़ना आपका काम है। अजीज बच्चों और बच्चियों, तमाम घर वालों को बुरी आदतों से आप बचा सकते हैं कि आप ये उनको पैगाम दे सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि हमारे असातिज़ा कराम ये बताते हैं कि जो भी नशा है ये अच्छा नहीं है, इससे बुरे असरात हो जाते हैं, बुरे असरात निकलते हैं। अजीज बच्चों और बच्चों, मेरा आपसे ये गुजारिश रहेगी, 2-3 बातों का खास कर ख्याल दीजिए कि हमारे स्कूल के आते के अंदर बुरी जो ये आदत है नशे की, इसे दूर रहो। चाहे शराब है, चाहे सिगरेट है, बीड़ी है, कुछ भी है, जो आपके घरों में अगर ये शराब बीड़ी जो भी कर रहे हैं उनको भी आप बता सकते हो। ये नहीं कि वो बड़े हैं, आप छोटे हो, आप उनको नहीं बता सकते, आप बता सकते हो। अगर बड़े गलत कर रहे हैं तो छोटे उनको बता सकते हैं, आपकी बात वो समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप भी नहीं बोलोगे तो फिर वो कैसे समझेंगे? उनको आदत है, आप उनको भी छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आप नशे से दूर रहो और दूर रहना। नशा जो है, नशे से हमारे हर लिहाज से नुकसान ही नुकसान है। सबसे पहले हमारे इज्जत का नुकसान है, हमारे पैसे का नुकसान है, हमारी सेहत का नुकसान है। जैसे हम दुकान पे जाएंगे, नशा तो फ्री में मिलेगा नहीं, नशे के लिए तो हमने पैसे खर्चने हैं, तो हमारे जेब का हो गया खर्चा। वो नशे से जो हमारी सेहत का हो गया वो हमारा नुकसान हो गया, और नशे से हमारी इज्जत जो चली गई। अगर हमें थोड़ी सी दारू ज्यादा हो गई, हम कहीं गिर गए, कुत्तों ने हमें चाटा, तो फिर हम इंसान कहाँ रहे? अगर ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया है तो हमारे पास दिमाग है, हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन हम ये इतना होने के बावजूद भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके आपसे एक रिक्वेस्ट ही समझो कि नशे से दूर रहो। आप तो नहीं करोगे मुझे लगता है, लेकिन जो आपके घर में कर रहे हैं उनको भी आप बता दो कि ये नशा जो है, इससे हमारा पैसा खर्च हो रहा है, हमारी सेहत का नुकसान हो रहा है और हमारी इज्जत का नुकसान हो रहा है। बहुत अच्छा। जिस घर में आप लोगों ने देखा होगा कोई नशा करता है तो वो घर सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई शाम को दारू पी के घर में आएगा, घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको आदत है, उसको दारू चाहिए। शाम को आएगा, बीवी को बोलेगा, बहन को, किसी को भी बोलेगा खाना लाओ। अब वो कहाँ से लाएंगे? बहुत मान लो मैं नशा करता हूँ, अगर मैंने घर में सामान ही नहीं लाया होगा तो वो घर वाले बनाएंगे कहाँ से? बिल्कुल। अगर मैं 300 रुपए दिन का कमा रहा हूँ, अगर मैं 200 रुपए खुद अकेला खा रहा हूँ और 100 रुपए 10 लोगों के लिए बचा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा? उससे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि अगर हम 300 कमा रहे हैं तो 300 मिलके अगर बांट के खाएं तो वो सबके लिए बेहतर है। और नशे के बजाय अगर हम कोई अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं जिससे हमारे सेहत को फायदा है, हमें वो तो चाहे कोई भी चीज हो, वो किसी से लेना नहीं है। नशा बहुत सारे किस्मों का है, वो किसी भी चीज में मिला के आपको दिया जा सकता है। और नशे ऐसे ऐसे हैं कि अगर एक बार हम लोगों को उस नशे की लत लग जाती है तो फिर जो सेंटर है, क्या बोलते हैं उनको, रिहेबिलिटेशन सेंटर जो बने हुए हैं, उनमें लोगों को उनके मुताबिक ठीक किया जा सकता है, लेकिन वहां पर भी फिर इंसान ठीक नहीं होता है। इसलिए कैसे कैसे होते हैं नशे? कुछ लोग सुइयां चुप होते हैं। सुई चुप होने का मतलब इंजेक्शन देखा है ना आपने, तो ठीक उस तरीके से उसमें कोई दवाई मिलाई जाती है और 2 दिन 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे इतने तक उसका नशा चलता है। उसके बाद से शायद कुछ का ज़्यादा भी चलता होगा, लेकिन जैसे ही वो नशा कम होने लगता है फिर वो इंसान
खाना नहीं ढूंढता, उसको रोटी की कोई जरूरत नहीं होती, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, और वो जैसे ही दोबारा होश में आता वो क्या ढूंढता है, क्या ढूंढेगा? नशा। वही नशा रिपीट में जो एक बार उसने लगाया था, क्योंकि हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, तो इस पर उस नशे का पूरा कंट्रोल हो जाता है। और जब उसका कंट्रोल हो गया, फिर हमारा नर्व सिस्टम काम करना बंद कर देता है, हम सोचना बंद कर देते हैं, हमें फिर वही नशा चाहिए, चाहे हमें उससे जितनी भी शक्ति क्यों ना आए। और उस नशे के लिए फिर हम एक दिन क्या कर लेते हैं कि इतने उसमें डूब जाते हैं, हमें वो नशा चाहिए ही चाहिए। और वो लोग जिन्होंने वो कल हमें नशा जो है फ्री में दिया था या कम पैसों में दिया था, वही फिर हमसे ढूंढेंगे आप इसके लिए ज्यादा पैसे लाओ, और नहीं तो हम आपको नशा नहीं करने देंगे। फिर हम लोग मजबूर हो जाते हैं, आप लोग मजबूर हो जाओगे जब इस नशे में मुतला, क्या बोलते हैं उर्दू में, क्या बोलते हैं, यानी कि आप उसमें इंक्लूड हो जाओगे अगर, तो फिर क्या हो जाएगा, मजबूरी बन जाएगी। क्या बनेगी? मजबूरी हो जाएगी। फिर हम लोग इस कदर पागल हो सकते हैं कि अगर वो बोलेंगे कि आपकी माँ की तिजोरी में पैसे पड़े हुए हैं, माँ चाबी नहीं दे रही है, तो शायद हम अपनी माँ का कत्ल करके भी उस चाबी को लेके वो पैसे चुरा के अपने उस नशे को पूरा करने के लिए चले जाएंगे। तो क्या ये बात सही होगी? नो सर। क्या आज हमें इतनी हिम्मत आती है कि हम अपने माता पिता को मार दें? नो सर। आती है किसी को हिम्मत? नो सर। लेकिन जब नशे में हम डूब जाते हैं, फिर हमें माता, पापा, बहन, भाई, सर कोई नहीं दिखता है। फिर इम्पोर्टेंस क्या हो जाती है कि हमें वो नशा चाहिए तो चाहिए। और ऐसे ऐसे नशे हैं कि फिर जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ये जो जीवन है ये अनमोल है, एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलने वाला। और इसको आराम से जियो। जो जायज चीजें खाने की, जो हमारी डेली रूटीन में, जो हमारे पूर्वजों से हमें बताई जाती है, जो सही इंसानों से हमें बताई जाती हैं, तो उनको खाइए, लेकिन नशे में कभी भी अपने आप को मिलने ना दीजिए। ये कोई लड़कों की बात नहीं,